हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। देखिए, द फैक्टर ऑफ geographical distribution is equally possible, even more significant that English is spoken as first or native language in at least four uh, continents of the world. Russian in two, Chinese and the Indian language is in one. English is without question the closest approach to a world language today. It goes without saying that no two persons ever have an identical command of their common language. अब देखिए certainly they have not they have not the same as vocabulary. There are at least minor differences in pronunciation. In needed, the same individual will pronounce his vowel and consonants in absolutely identical uh, fashion every time. Every time he utters them, everyone possesses in addition certain individual traits of grammatical form order and order constituting that peculiar and personal quality of language which we term as a style. All of this is implicit in the well-known phrase style is the man. No men are identical, no two styles are the same. If this be true of but two persons, the potential of differences resident in a language spoken by more than 200 millions truly stages imagination. अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि the author argues that English is the closest approach to a world language because there are more native speakers of English than of any other language. यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड है द फैक्ट दैट the same individual will not pronounce his vowel and consonants identically every time shows that, यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, so that no two persons speak the same language exactly the same way. नेक्स्ट देखिए, थर्ड है कि it is evident from the passage the style is, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, the style is language used in a particular way by an individual. नेक्स्ट, फोर है according to some authorities, यहाँ पे चार का होगा सी ऑप्शन, about 1/4 of the world's population speaks English. ठीक है, 5 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है द ओवरऑल implication of the passage is that 200 millions people speak English as a native language. A world certainly be an
under be and underestimate. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। तो यहाँ पे है कि वन शुड नोट डॉट डॉट, वन शुड नोट डॉट 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 क्राइम्स। तो यहाँ पे होगा 6 का ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी परपीट्रेट। ठीक है, तो वन शुड नोट परपीट्रेट। तो यहाँ पे देखें तो परपीट्रेट जो है क्या है? एक वर्ब है। ठीक, इसका अर्थ होता है कमिट अ क्राइम, डू डू रॉन्ग, यानी इसका अर्थ होता है अपराध, अपराध या गलती करना, अपराध या गलती करना। ठीक है, तो परपिट्रेट यानी अपराध या गलती करना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपको PERPETUAT, ये भी वर्ब है। ठीक है, तो PERPETUAT, ठीक है, इसका अर्थ ये भी वर्ब है। इसका अर्थ होता है टू काउज टू कंटिन्यू फॉर एवर, यानी नित्य, नित्य या फिर चिरस्थाई, नित्य या फिर चिर अस्थाई। ठीक है, नित्य या फिर चिरस्थाई जो बनना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा परपीचुएट। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, select the option that can be used as one word substitute for given group of words। a room where food, ठीक है, वो कहता है कि a room where food and जो है एंड कटलरी आर केप्ट। तो 7 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होता है? पेंट्री होता है, PANTRY, पेंट्री, यानी ऐसा जगह जहाँ भोजन एवं रसोई से संबंधित सामान रखा गया हो। ठीक है, उसे बोलते हैं पेंट्री। क्या बोलते हैं? तो पेंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे है कि अ रूम एंड फूड क्रॉकरी एंड कल्चरी आर केप्ट, दैट मीन्स पेंट्री, ऐसा जगह जहाँ भोजन एवं रसोई से संबंधित सामान रखा गया हो। उसके बाद बेकरी, BAKERY, बेकरी मतलब होता है आपको ब्रेड। ठीक है, ब्रेड सेकने वाली जगह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 है कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। as the bomb exploded, people ran helter skelter। तो 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी इन डिसऑर्डरली। ठीक है, इन डिसऑर्डरली हेस्ट। तो यहाँ पे जो है 8 का होगा बी ऑप्शन। तो हेल्टर स्केलेटर जो है इडियम का अर्थ होता है इन डिसऑर्डरली हेस्ट, यानी घबराहट में। ठीक है, घबराहट। ठीक है, घबराहट, तो घबराहट में या उतावलेपन में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इन डिसऑर्डरली। ठीक है, इन डिसऑर्डरली हेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है। कहता निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुने। कहता है हिंदी के प्रसिद्ध कवि दिनकर एक बार रिक्शा पर बैठकर कहीं जा रहे थे। उन्हें तभी अपनी कविता की एक पुस्तक पर जो 1000 रुपये मिले थे। उन्होंने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रही थी। दिनकर जी ने रिक्शा रुकवाया और उसके पास गए। आज तुम्हें कितनी भीख मिली है? सवेरे से कुछ नहीं मिला बेटा। दिनकर जी सोचने लगे, अगर इस औरत को जो है मेरी तरह कोई बेटा होता तो क्या इसे इस तरह भीख मांगनी पड़ती। उन्होंने उसे 1 रुपया दिया और बोले, माँ अब तुम्हें कितने दिन भीख नहीं मांगनी पड़ेगी? 3 दिन बेटे। मान लो यदि मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूँ तो 20 या 25 दिन। मान लो मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूँ तो 4 या 5 महीने। और देखिए फिर कहता है कि सूरज की भीषण गर्मी में दिनकर जी प्रश्न करते रहे और वह बुढ़िया उन्हें उत्तर देती रही। रिक्शा चालक बहुत चक्का सा देखता रहा। जब दिनकर जी ने अपना अंतिम रुपया भी बुढ़िया के भिक्षा
पात में डाल दिया तो वह खुशी से चिल्ला उठी, बेटा अब मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब देखिए, फिर कहता दिनकर जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने उस औरत के पांव छुए और रिक्शा पर बैठकर जो है घर चले गए। क्वेश्चन है कि दिनकर संतुष्ट हो गए थे क्योंकि क्योंकि उन्होंने बुढ़िया को भीख मांगने से बचा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बुढ़िया को दिनकर जी ने कितने रुपए दिए? तो 10 का होगा बी ऑप्शन, 1000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चूंकि दिनकर जी को एक कविता की पुस्तक पर 1000 रुपये मिले थे और उन्होंने इन सभी पैसों को भीख मांगने वाली बुढ़िया को दे दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में इस कहानी का सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पे 11 का होगा ए ऑप्शन, एक लाचारी भिखारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है दिनकर जी जो है रुक कर उस बुढ़िया से बातें करने लगे क्योंकि वे भीख मांगने वाली औरत की मदद करना चाहते थे। नेक्स्ट है कि रिक्शा चालक को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि दिनकर सूरज की भीषण गर्मी में खड़े थे। ठीक है, तो देखिए, तपती धूप में एक जो बूढ़ी की भीख मांगते देख दिनकर जी को दया आ गई। तब वह जो है रुक कर बुढ़िया से बात किया और फिर पैसे देकर उसकी मदद की। ठीक है, यह देखकर जो है रिक्शा चालक को आश्चर्य हुआ। नेक्स्ट है कि सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? तो 14 का होगा सी ऑप्शन, वज्र। सूरदास की कृतियों की भाषा जो है वज्र है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सुरसागर, साहित्य लहरी, ठीक है, नल जो है दमयंती आदि। मलिक मोहम्मद जायसी ने पदावत, ठीक है, पदावत अवधी भाषा में लिखे हैं। कबीरदास की भाषा जो है यह सधुकरी है। कबीरदास की भाषा जो है सधुकरी है। नेक्स्ट, कहता कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? 15 का ए, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनाई जाती हैं उसे नाम धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे हथियाना, बतियाना, लजाना आदि। श्याम ने चौकीदार से द्वार खुलवाया, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, वे खाना खा रहे थे। ठीक है, इस वाक्य में सहायक क्रिया। नेक्स्ट है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? 16 का ए, क्रोध। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है, निम्न रस एवं उसके अस्थायी भाव जैसे श्रृंगार का रति होता है, भयानक का भय होता है, करुण का शोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान जो है किन्हें प्राप्त हुआ? 17 का ए, तो रामविलास शर्मा को। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को प्राप्त हुआ है। व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया। पहला व्यास सम्मान वर्ष 1991 में रामविलास शर्मा को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा आदि। शिव प्रसाद सिंह की प्रमुख रचना है दादी माँ, ठीक है, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल आदि। नेक्स्ट, कहता इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 18 का ए, सोचना। तो आलोचना का पर्यायवाची शब्द सोचना नहीं है। आलोचना का पर्यायवाची शब्द जो है समीक्षा, टिप्पणी, ठीक है, नुक्ता चिन्ह आदि है। आलोचना का विलोम शब्द जो प्रशंसा करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए 19 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण अक्ष है। ठीक है, तो तालव्य व्यंजन है च, छ। तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ। ठीक है, यह तालब स य, तालब स य। ठीक है,
देखिए तो यहाँ पे तालव्य व्यंजन है च छ ज झ य, तालव स और य है, ठीक है। उसके बाद देखिए महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ठीक है, महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है, ठीक है। घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो घोष व्यंजन जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है, ठीक है, पांचवा व्यंजन होता है। तो यहाँ पे तालव्य की यदि बात करें तो च छ ज झ य है, ठीक है। तो च जो हो जाता है ये हो जाता है अल्पप्राण, अल्पप्राण अघोष, ठीक है। छ जो है यह है महाप्राण अघोष, ठीक है। ज जो है यह है अल्पप्राण घोष, अल्पप्राण घोष। और झ जो है यह है महाप्राण घोष, ठीक है, महाप्राण घोष। और यह जो है यह आपको महाप्राण घोष, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये देखिए चौथा। तो यहाँ पे बताए थे कि घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए। 20 नंबर है कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या जो है वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वह कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपको 20 का हो जाएगा बी, लटानुप्रास अलंकार। तो जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास अलंकार, तो जिस अलंकार में एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति होती है उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। छेकानुप्रास अलंकार, तो जिस अलंकार में एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति होती है उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, तो जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले जो है वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। और छेकानुप्रास अलंकार, तो जिस अलंकार में एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति होती है उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट, किस कृति के लिए जो अमृतलाल सागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 21 का ए, अमृत और विष। तो अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृत और विष कृति के लिए प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, फिर है कि छंदभंगुर जो किस प्रकार का विशेषण है। 22 का सी, कालबोधक। तो छंदभंगुर जो है कालबोधक विशेषण है। खट्टा मीठा शब्द स्वाद बोधक विशेषण है। जो शब्द गुण दोष रंग आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि कृति लता किस भाषा की रचना है। सी ऑप्शन, अपभ्रंश। कृति लता अपभ्रंश भाषा की रचना है। कृति लता विद्यापति की रचना है। इसका अधिकांश रचना संस्कृत एवं अवहट में है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियां। नेक्स्ट, फिर है कि लव कुश का भाई है। लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 24 का सी, संबंध। तो देखिए लव कुश का भाई है, इस वाक्य में संबंध कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से आकार उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्तियां हैं का, की, के, रा, रे, री, ना, ने, नी। नेक्स्ट, कहता है इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है। तो ए ऑप्शन, आलोक। तो देखिए तिमिर शब्द का विलोम शब्द है आलोक, ठीक है। कठिन शब्द का विलोम है सरल, ठीक है। कृत्रिम शब्द का विलोम है प्रकृत, ठीक है, नैसर्गिक। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, कहता है कि इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है। 26 का हो जाएगा सी ऑप्शन, मंद, ठीक है। तो देखिए विकल्पों में तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द है मंद। प्रखर का भी विलोम शब्द मंद है, ठीक है। तीक्ष्ण का या अन्य विलोम शब्द जो है कृंत,
ठीक है, कुंद मंदबुद्धि है। ठीक है, तीव्र का विलोम शब्द भी क्या है, मंद होता है। नेक्स्ट 27 है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। 27 का सी ऑप्शन यानी लिंग। तो देखिए, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद है, एक तो पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। 28 का ए ऑप्शन आदित्य। तो देखिए, विकल्पों में आदित्य शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का अन्य पर्यायवाची शब्द है सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, अंशुमान आदि। हुताशन का पर्यायवाची शब्द है वैश्य। ठीक है, वैश्वानर। ठीक है, सूची, ज्वाला, आग, अग्नि, अनल, पावक, दहन, धूमकेतु, ज्वलन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। 29 का सी ऑप्शन ट। तो देखिए, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण क्या है, ट है। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण क्या है, ट है। तो मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण ट है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन घोष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है। देखिए, मूर्धन्य अल्पप्राण जो है अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण क्या है, ट है, ट। उसके बाद मूर्धन्य वर्ण वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन जो अघोष कहलाता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ण वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम जो है घोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के अंतिम अक्षर यानी पंचम अक्षर अनुनासिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 30 का होगा सी ऑप्शन, तो सांप। तो देखिए, इनमें से सांप शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द होते हैं जैसे धातु, अन्न, माह, दिवस, तारे, ग्रह, ठीक है, रत्न, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष आदि का नाम। अपवाद में पृथ्वी, चांदी, मूंग, अरहर, दाल, इमली, काशी, मथुरा आदि स्त्रीलिंग शब्द है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर